Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP Residence Kota. Today we will start light. Okay, first lecture of light. So first of all, that is, what is light? Okay, it is invisible form of energy. With the help of light we can see the objects. Light itself is invisible. With the help of light we can see the objects. Okay, is it clear? It is optics, the study, the branch of physics in which the study of light is done. Means we will study light, is known as optics. Optics is divided into two parts. At the branch of physics which study light, it is divided into three parts. Number optical physics, first of all geometrical optics, in which it is related to reflection and refraction. It is wave optics, it is related to interference, diffraction and polarization. Or third is quantum optics. Okay, the study of light is divided into three parts. Quantum optics, it is related to interaction between the atoms. So it is related to photoelectric effect. Okay. So first of all, nature of light means theories about nature of light. Is it clear? Nature of light. First of all, it is given by Newton. So Newton's theory, first है Newton's corpuscular theory. First of all, about light के बारे में न्यूटन ने बताया था. Light travels in the form of very small particles, in a stream of very small particles. These particles are known as corpuscles. Corpuscles का मतलब very small particles. Okay, they move very fast. With the help of this theory, we can explain reflection and refraction easily. But why this theory was, after some time this theory was failed? Because this theory was failed to explain the interference of light and the diffraction of light and also the polarization of light. And there are so many reasons of failure of this theory, that according to Newton, at interface, when light falls, either it is attracted or repelled by the interface. जब लाइट यहाँ फॉल होगी, पार्टिकल्स यहाँ फॉल होंगे, या तो रिपेल होगी या फिर अट्रैक्ट होगी. When it is repelled, then there will be reflection. When it is attracted, there will be refraction. Okay, but अगर देखना चाहे, when a glass plate is placed in sunshine, then साइड से चमकती है, मीन्स रिफ्लेक्शन हो रहा है. नीचे भी लाइट निकलती है, मीन्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, और ये हीट भी हो जाती है, इट मीन्स ये एब्जॉर्ब भी कर रही है. तो ऑल द थ्री फिनोमेना टेक्स प्लेस, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, आइदर द पार्टिकल्स कॉर्पस्कुल्स आर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड. दे आर अट्रैक्टेड देन रिफ्रैक्शन, दे आर रिपेल्ड देन देयर विल बी रिफ्लेक्शन. एक बार में एक ही फिनोमेना हो सकता है. क्लियर? फर्स्ट वन दिस. अब सेकंड थिंग देखिए जरा. सपोज कीजिए लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर.
पार्टिकल यहाँ आ रहे थे, दे आर अट्रैक्टेड बाई द वाटर, देन व्हेन दे आर अट्रैक्टेड बाई द वाटर, देन द स्पीड ऑफ इन दीज corpuscles मस्ट इंक्रीज इन वाटर, देन द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकली इट नॉट सो, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मच मोर इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ड्यू टू दिस थ्योरी वाज फेल्ड। क्या क्या रीजन थे? एक तो ये दो फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर सके, दूसरा था या तो अकॉर्डिंग टू हिम या तो रिफ्लेक्शन होगा इंटरफेस पर या रिफ्रैक्शन होगा, जबकि साइमल्टेनियसली ऑल द थ्री फिनोमेना टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरी बात, ये अट्रैक्ट होंगे तो दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर में स्पीड और कम हो जाती है, सो दिस थ्योरी वाज फेल्ड। तो एक और थ्योरी दी गई, दैट थ्योरी नोन एज वेव थ्योरी, हाइगन्स। वेव थ्योरी बी, according to Huygens, light travels in the form of waves. These waves are longitudinal. This was the mistake of Huygens. ये longitudinal wave होती हैं, ऐसा इन्होंने बताया। Is it clear? They are longitudinal waves according to Huygens. Again, light travels in the form of waves. These waves are longitudinal waves. तब लोगों ने पूछा कि भाई ठीक है, इनके मीडियम, चलने के लिए मीडियम चाहिए, जबकि सन से भी लाइट यहाँ तक आती है, वो कैसे मूव करती है? तो उन्होंने बताया देयर इज एन हाइपोथेटिकल मीडियम दैट इज नोन एज ईथर। ईथर जो हर जगह मौजूद हैं। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन easily explain the reflection, refraction, interference and diffraction. Easily हम explain कर सके। इस बार क्लियर? After some time, Maxwell corrected this theory. According to Maxwell, the waves, light travels in the form of transverse wave, not longitudinal. Or transverse wave, they can travel through vacuum also. Again, according to Maxwell, light travels in the form of transverse wave, not longitudinal, transverse wave. Is it clear? Or they can travel through vacuum also. vacuum से travel कर सकती हैं, मीडियम में तो करेंगी, लेकिन vacuum में भी travel कर सकती हैं। This was the correction made by Maxwell. So, with the help of this theory, we can explain reflection, refraction and interference, diffraction and polarization easily. But this theory was failed to explain photoelectric effect. What is photoelectric effect? When the light falls on a metal, then metal emits electrons. So this theory was failed to explain why the electrons, they will come out from the metal. So a new theory was given, that is third theory. It is given by quantum theory. See, quantum. Okay, or photon theory. According to this, light travels in the form of packets of energy. This packet is known as photon. Its energy is h nu. E is equal to h nu. H is Planck's constant. Planck's constant. This theory was given by Planck. So h is Planck's constant, इसकी वैल्यू है 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule into it is, and nu is frequency of light. Frequency of light. So according to Planck's quantum theory or photon theory, light travels in the form of packets of energy. These packets are known as photon. Actually, it is the quanta of energy, minimum value of energy. इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है. इट्स एनर्जी इज एच न्यू. या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस वन, फोटोन. इफ फोटोन इज एट रेस्ट, मीन्स रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो. इसकी एग्जिस्टेंस तभी है व्हेन इट इज इन मोशन. ओके,
So this theory was given by Planck. With the help of this theory, we can easily explain the photoelectric effect. It was explained by Einstein, Nobel Prize मिला था. Explained with the help of quantum theory. Photoelectric effect is explained easily, but this quantum theory was failed to explain reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. अब नाउ कुछ फिनोमेना है जो हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फिनोमेना पार्टिकल थ्योरी मीन्स फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं. तो हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, तो क्या किया? नेचर ऑफ लाइट इज सो सम फिनोमेना आर एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी as reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. Explained by wave theory. Okay, but this theory was failed to explain the photoelectric effect. So photoelectric effect is explained by quantum theory. But this theory, quantum theory, was failed to explain this one. It means light has dual nature. Wave theory as well as quantum theory, particle theory. ओके, अब प्रॉब्लम ये आई कहाँ पर हम वेव थ्योरी यूज करें, कहाँ पर हम क्वांटम थ्योरी यूज करें. तो व्हेन देयर इज नो डिवीजन ऑफ लाइट देन वी विल यूज वेव नेचर, वेव थ्योरी. जहाँ लाइट की डिवीजन की जरूरत नहीं है तो वेव थ्योरी यूज करेंगे. जब लाइट की डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल मेटल पर जो गिर रहा है लाइट, उसका कितना पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर लाएगा, कितना पार्ट उसको एनर्जी देगा. व्हेन देयर इज ए नीड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइट देन वी विल यूज क्वांटम नेचर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ओके, मॉडर्न थ्योरी क्या है? इन मॉडर्न थ्योरी बोथ थ्योरी वाज कंबाइंड. तो photons travels, photons are made up of wave, photons are made up of waves. इस तरह से होता है फोटोन. ये देखिए, इट इज फोटोन, इट इज वेव, फोटोन. अब दोनों को मिक्स करके एक किया गया ना, फोटोन है तो पार्टिकल भी हो गया, वेव भी हो गया. तो इट इज द नेचर ऑफ लाइट. Is it clear? Okay, after nature of light, that is what are the sources of light? Okay, everything is source of light. सो जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो भी सोर्स ऑफ लाइट है, जो लाइट एमिट कर रहा है वो भी सोर्स ऑफ लाइट है. तो ऑन द बेसिस दिस दे आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. द ऑब्जेक्ट which emits its own light are known as luminous. The objects which emit its own light is known as luminous source of light. For example, sun, candle. Okay, these are the luminous source. और सेकंड पॉइंट पे नॉन ल्यूमिनस
source of light. Non-luminous source of light. Every object which you can see, but they have not own light. When light falls from the luminous object, on any other object, then it becomes visible. It means, for example, मुझे मार्कर दिख रहा है, तो जिस पर लाइट फॉल हो रही है, और ये लाइट फॉल इट इज रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आई पर दिख रही है, तो ये लाइट एमिट तो कर रहा है, बट इट्स नॉट ओन लाइट. ओके, व्हेन light falls on objects, then they becomes visible, then they becomes visible. Actually it is not all light. Visible हो रहा है, it means it is emit light. Okay, these sources are known as non-luminous source of light. For example, any object. Example, the objects which are visible but have no its own light, ये किसी से लेकर फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो दीज आर द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. अब आता है मीडियम ऑफ लाइट. मीडियम ऑफ लाइट, okay, on the basis this lights mediums are divided into three parts. Number one, transparent medium, मतलब the medium through which light can travel, a lot of amount light can travel, is known as transparent. Through which light can travel, through which light can travel. Okay, is known as transparent medium, such as water, glass, etc. जिनसे लाइट क्रॉस हो सकती है, that is transparent. Number two, translucent medium, the medium through which only a part of light can pass, the medium through which a part of light इसमें क्या था, मैक्सिमम लाइट कैन पास, मैक्सिमम लाइट कैन पास इज नोन एज ट्रांसलूसेंट मीडियम. इज इट क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल वाटर, अब देखिए ground glass, greased paper is translucent. और देखिए यहाँ देखिए नोट में, what a thin layer of water, clear water, is transparent, but thick layer of water, of clear water, is translucent.
अब थर्ड पार्ट आता है दैट इज ओपेक मीडियम, द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट क्रॉस, पास ही नहीं हो सके, द मीडियम थ्रू विच light cannot pass, cannot pass, known as that is opaque medium. For example, this just a light is falling but it not cross. Okay, piece of stone as piece of stone. There may be so many examples, desk, etc. Okay, these are known as opaque medium. अब लेते हैं आगे नेक्स्ट देखिए, अब वाटर में भी हो सकता है तो क्लियर वाटर हो सकता है, जैसे अब एयर है, एयर कैसा है, ग्लास कैसा है और इस टाइप से कैसे, तो सबसे पहले लेते हैं होमोजीनियस मीडियम क्या होता है। नोट में देखिए यार, नोट होमोजीनियस मीडियम, मीडियम ऑफ लाइट whose composition everywhere is same, similar, the composition of medium at every point, at each point, each place is same, each point is known as homogeneous medium. For example, glass, okay, glass, और कुछ भी ले सकते हैं और भी, अल्कोहल, okay, प्योर अल्कोहल, these are the examples of homogeneous. अब heterogeneous, medium, it is confirmed composition of the medium at different places is different. If composition of medium at different places is different, then it will be heterogeneous medium. Example, एयर, अब एयर कहीं डेंस होगी कहीं रेयर होगी, ओके, यहाँ वाटर को भी लिख सकते थे, ओके, इट इज क्लियर वाटर, और ये ले सकता हूं डर्टी वाटर, फॉग एटसेट्रा, फॉग भी हो कहीं डेंस होगा, these are the homogeneous and heterogeneous medium. Is it clear? Now next topic is some definitions. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट जानते हैं आप, क्या स्पीड होती है वैक्यूम में इसकी, ओके, क्या क्या हो सकता है इसका, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज सम डेफिनेशंस related to light, first of all, ray of light, actually it is the path of light through which it will travel, okay, it is the path of light in which direction
it travels, okay, known as a ray of light. It is denoted by a straight line with arrowhead. Head shows the direction of propagation. Arrow shows the direction of propagation of light. Okay, it is a ray of light, a ray of light. Now the beam of light, the bunch of light rays known as beam, the bunch of light rays is known as beam of light. They may be of three types. Number one is convergent beam, divergent beam, and parallel beam. So they are of three types. Number one is convergent beam. Convergent beam. Okay. If rays are converging, then beam will be converging beam. Beam will be converging. For example, in this way, ऐसे आ रही है. Actually, by actual source of light, it is never possible. जैसा कोई सोर्स रखा है तो लाइट इधर भी जाएगी तो डाइवर्जिंग होगा. ये कन्वर्जिंग बीम है ऐसा वाला. इट इज कन्वर्जिंग बीम कहीं पॉइंट में मिल रहा है तो ऐसा किसी सोर्स से हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो इट इज नोन एज practically it's not possible. Okay, practically it's not possible. So source is virtual. Practically is not possible. So object or source will be virtual. अगर किसी ऑब्जेक्ट से कन्वर्जिंग बीम निकल रहा है तो डेफिनेटली सोर्स विल बी वर्चुअल. ओके, नंबर 2 देखिए जरा, इज द कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन. नंबर 2 देखिए, दैट इज कन्वर्जिंग. नंबर 3 इज डाइवर्जिंग बीम. अब ज्यादा लिख नहीं रहा मैं, सीधा सीधा ये सोर्स है, इट इज डाइवर्जिंग बीम. फैल रहा है ना, इट इज डाइवर्जिंग बीम. इधर भी होगा, इट इज डाइवर्जिंग सोर्स. ओके, सो ऑब्जेक्ट और सोर्स विल बी रियल. ओके, पैरेलल बीम क्या होगा? थर्ड वाला देखिए, पैरेलल. फोर्थ, इट इज 2, इट इज थर्ड. पैरेलल बीम ऑफ लाइट. तो ये तो कंफर्म हो गया, रेज आर पैरेलल इन दिस वे, इट इज पैरेलल बीम. ओके, अगर ये डाइवर्जिंग बीम है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे देखूंगा, इट बिकम्स पैरेलल. इफ सोर्स is at infinity, then its beam will be parallel, will be okay. These are the some definitions related to. Now the reflection, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Reflection of light. So what is the definition?
The bouncing back of light from the interface of the medium is known as reflection of light. Bouncing back of light in same medium after striking at the interface of two media is known as a reflection of light. Reflection of light. Is it clear? In this way, चलिए at the any interface, light यहाँ से fall होगी. Okay, it will back in this direction. Clear? It is known as incident ray. It is known as reflected ray. ओके, चलिए आप देखिए, आगे देखिए. अब हम एक और फिगर बनाते हैं. देखिए, सम डेफिनेशंस. अलग से फिगर देखिए. इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, लाइट ऐसे फॉल हो रही है. At this point, it is incident ray. Is it clear? चलिए, अगर इस पॉइंट पे इट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, इट इज नॉर्मल. ओके, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. अगर ये रिफ्लेक्ट किधर होगा, इस साइड में रिफ्लेक्ट होगी. Is it clear? Okay, so it is known as reflected ray. It is known as angle of reflection or angle of reflection. ये angle of incidence I. Is it clear? Okay, this angle is known as glance angle of incidence, and this angle is known as glance angle of reflection. अब कुछ भी पूछा जाए आपसे, देखिए जरा. व्हाट इज द नॉर्मल? इट इज द परपेंडिकुलर to reflecting surface at the point of incidence. ये वाला known as normal. What is the angle of incidence? The angle between incident ray and normal is known as angle of incidence. What is the angle of reflection? The angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. What is the glance angle of incidence? The angle between the reflecting surface and the incident ray is known as glance angle of incidence. अब देखिए, what is the angle of glance angle of reflection? The angle between reflected surface and the reflected ray is known as glance angle of reflection. Is it clear? तो देखिए आगे. These are some definitions. Laws of reflection. Laws of reflection. There are two laws of reflection. It is reflecting surface, it is incident ray, normal इधर जाएगी ये, it is known as incident ray, it is reflected ray, it is normal. The angle of incidence I, it is the angle of incidence, angle of reflection R. It is reflecting surface. तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. देखो, इंसिडेंट रे
reflected ray and normal all lie in same plane. Okay, in same plane. अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च मैं बोर्ड पर ऐसे डालता हूं तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट भी इस बोर्ड पर ही होगी, नॉर्मल भी इसी बोर्ड पर होगा, एक ही प्लेन में होंगे ऑल द थ्री। इट्स नॉट पॉसिबल कि लाइट फॉल कर रहा हूं बोर्ड पर और रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ देखिए जरा, सेकंड लॉ, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection will always be equal. Okay, angle I is equals to angle of R. जनरली ऐसे भी लिखता हूँ, I is equals to R, एंगल ही है, ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ये ऑलवेज इक्वल होगा। इज क्लियर? दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। अब नोट में देखिए जरा, ड्यूरिंग रिफ्लैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, नंबर वन, स्पीड ऑफ लाइट विल नॉट चेंज। स्पीड of light will not change because speed depends on medium। तो उसी मीडियम में लौट रही है, because speed depends on medium। जैसे लाइट की स्पीड एयर में अलग होगा, वैक्यूम में, एयर वैक्यूम में अलग होगा, दूसरे मीडियम में लूंगा, वाटर में अलग होगी। नंबर टू, ओके, velocity of light will change because velocity has magnitude as well as direction। तो डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा, ऐसे आ रही थी ऐसे जाएगी, क्या चेंज होगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है ना भाई? वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ऐसे आ रही थी इधर जा रही है, तो डायरेक्शन विल चेंज। नंबर थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल नॉट चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखिए यहां ऐसे कर रहा हूं, एक सेकंड में 5 टाइम कर रहा हूं, तो आप भी 5 ही काउंट करेंगे ना? इट्स द फ्रीक्वेंसी। मेरी फ्रीक्वेंसी है, मैं एक सेकंड में 5 टाइम ऐसे कर रहा हूं, इट्स द फ्रीक्वेंसी। ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप एयर में बैठे हैं तो कितने काउंट करेंगे? 5 ही काउंट करेंगे। अगर आप वाटर में बैठ जाए तो कितने काउंट करेंगे? 5 ही काउंट करेंगे। को मैं एक सेकंड में 5 टाइम कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स हियर, फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन मी, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, सो इट विल नॉट चेंज। नंबर 4, अच्छा आप देखिए, V इक्वल्स टू एन लैम्डा, यू नो वेरी वेल, V इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो बिकॉज V इक्वल्स टू एन लैम्डा, या फॉर लाइट C is equals to nu lambda, nu is frequency and lambda is wavelength। अब देखिए स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, C and nu will not change, so wavelength of light lambda will not change। नंबर 5 देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल चेंज। इंटेंसिटी
of light will decrease. मैंने आपको बताया था जैसे कोई ग्लास प्लेट सनशाइन में रखी हुई है तो जो लाइट फॉल हो रही है, जितनी भी लाइट फॉल हो रही है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सम इज रिफ्लेक्टेड, सम इज ट्रांसमिटेड, सम इज एब्जॉर्ब्ड. तो जो लाइट फॉल हो रही थी कुछ पार्ट तो इधर जाएगा तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज, बाकी कुछ नीचे निकलेगा, कुछ हीटअप हो जाएगी तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज. दीज आर द मेन पॉइंट्स. ओके, नाउ रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, मान लीजिए पैरेलल बीम फॉल हो रहा है स्मूथ सरफेस पर, ये स्मूथ सरफेस, तो लाइट पैरेलल बीम ऐसे फॉल हो रहा था. इट्स अ पैरेलल बीम, इंसिडेंट पैरेलल बीम. तो अब क्या होगा? ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड बीम. अब इंसिडेंट बीम पैरेलल बीम फॉल हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल ही है, तो इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. इफ लाइट falls on smooth surface, okay, and incident beam is parallel beam, then reflected beam will also be पैरेलल बीम, ये भी पैरेलल बीम होगा. इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. वैसे आप बता सकते हैं, देखो अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इट इज आई, इट इज आर, यहाँ भी ड्रॉ करूंगा ये आई और आर, ऐसे ही आई और आर होंगे ना, ये विल बी इक्वल, तो ये और सेम आएगा पैरेलल बीम. नाउ इर्रेगुलर देखिए जरा, नंबर 1 नंबर 2 में इर्रेगुलर reflection. When light falls on rough surface, then it will reflect in all possible directions. Okay, this phenomena is known as irregular reflection. Okay, for example, it is a surface, ऐसे surface था, it is surface, rough surface. अब देखिए यहाँ लाइट फॉल हो रहा है, पैरेलल बीम फॉल हो रहा है ऐसे, ये यहाँ फॉल हो रहा है. ओके, इट इज पैरेलल बीम, ये पैरेलल बीम फॉल हो रहा है, इंसिडेंट है ये. अब क्या होगा? सोच के देखिए, अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ऐसे आएगा ना, ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. यहाँ ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा, ये आई इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा. यहाँ करूँगा तो ये कुछ ऐसा आ रहा है. हर पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है ये. आई आर विल बी इक्वल, ये आई एंड आर, ऐसे आई एंड आर, इट इज आई और आर, हर पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है. इट इज रिफ्लेक्टेड बीम. तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. अब आपको याद होगा जो हमारी कॉपीज हैं ना, बुक्स हैं, दे आर मेड ऑन रफ पेपर, नॉट स्मूथ. न्यूज़पेपर भी रफ पेपर पर बनाया जाता है. अगर स्मूथ होगा तो एक साइड से लाइट पड़ रही होगी, उस साइड को चमकेगा, एक डेफिनेट डायरेक्शन में चमकेगा, ये दिखाई नहीं देगा उधर से. लाइट जो फॉल हो रही होगी पैरेलल तो पैरेलल ही निकलेगी, तो साइड से चमकेगा, दिखेगा नहीं मुझे. अब नोट देखिए जरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल
for each surface, note laws of reflection are applicable for each surface, that is for smooth or rough surface. हर के लिए, इज इट क्लियर? नंबर 2 पे देखिए, इफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, okay, at interface means I, angle I is equals to 0, then it will bounce back in the just opposite direction, it will reflect just in opposite direction. For example, ये इंटरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट ऐसे फॉल हो रही थी, यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है. इट इंसिडेंट रे मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू 0, ऐसे लौटेगी ये रिफ्लेक्टेड रे, और यही तो नॉर्मल है ना, एंगल आर विल बी 0, और यही नॉर्मल भी है, नॉर्मली फॉल किया है मैंने इसको. ओके, दीज आर द मेन पॉइंट्स. अब लेते हैं हम मिरर, यहां से स्टार्ट होगा, दैट इज मिरर. ओके, व्हाट इज मिरर? A smooth, highly polished surface, which is capable of reflecting a good amount of incident energy, capable of reflecting a good amount of incident energy is known as mirror. They are of following types. They are of following types. Number 1 is plane mirror, और second is spherical. ये हम बाद में लेंगे, सबसे पहले प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जानते हैं आप क्या होता है? प्लेन मिरर कुछ इस टाइप का होता है. ये प्लेट है, ग्लास प्लेट, वन साइड इज पॉलिश्ड, एक साइड पर ये वाली साइड है पॉलिश्ड. ओके, सरफेस, और ये वाला जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस, ग्लास प्लेट है ये. अब इसको मैं ऐसे शो करूंगा, ये प्लेन मिरर, इट इज पॉलिश्ड सरफेस and it is reflected surface. It is plane mirror. Okay, now image formed by plane mirror, image formed by plane mirror.
बाई प्लेन मिरर। अब कैसा नेचर होगा इसका देखते हैं। चलिए, इट द प्लेन मिरर M1 and M2. Okay, an object is placed here. ओ ऑब्जेक्ट, तो मैं से इमेज फॉर्म, सपोज कीजिए पहली रे ऐसे फॉलो हो रही है, नॉर्मली ऐसे फॉलो हो रही है, कम बैक रिफ्लेक्टेड, तो ये कंफर्म हो गया। एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है इधर से हो रही हो। चलिए एक रे और लेते हैं। चलिए एक रे और लिया मैंने, ये वाली रे है, ये इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही, कोई भी रे ले सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले सकता हूँ। ओके, अब रिफ्लेक्ट किधर होगी? है ऐसे होगी ना, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। हियर विल बी द नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अगर ये पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है कि मुझे ये यहां से आ रही हो। हियर विल बी द इमेज आई। इज इट क्लियर? इमेज फॉर्म, तो कैसा इमेज बनता है? नेचर ऑफ इमेज, कैसा होगा? It cannot be caught. What is the real and virtual image? If it is caught on a screen, it is real. If cannot be caught in a screen, then it is virtual. For example, आप प्लेन मिरर में अपना फेस देख रहे हैं, आपको दिखाई देगा। क्या उस फेस को किसी स्क्रीन पर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सो इट इज वर्चुअल। प्लेन मिरर में कैसा बनता है? तो नंबर 1, इमेज विल बी वर्चुअल। याद रखना, मैं ऑब्जेक्ट को रियल ले रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज विल बी रियल, तो इमेज इज वर्चुअल। नंबर 2 देखिए, इट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। या ऐसे कह सकते हो, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर and distance of image from mirror will be equal होगी ना। ये फिगर देखिए जरा, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट आई, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। नाउ थिंक अबाउट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दे आर सिमिलर। देखिए इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल A, B and I are similar. Similar क्या कहूँ? They are congruent. They are congruent triangles. Why? देखिए ये साइड तो कॉमन है इसमें, ये साइड कॉमन है, ये एक एंगल 90 है, इसका भी 90 है। Now think about this angle. You know very well, this angle is known as glance angle of incidence. और दिस एंगल इज नोन एज ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा। और यू नो वेरी वेल आई इक्वल्स टू आर, तो ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी आल्सो इक्वल। और ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये एंगल आएगा 90 माइनस आई और ये आएगा 90 माइनस आर, बिकॉज इट इज 90 माइनस आर। ओके, क्लियर? अब देखिए ये और ये देखिए, आई एंड आर इक्वल, सो ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। तो ये एंगल भी इक्वल हो गया। देख कॉन्फिडेंट, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? सो ये साइड ओ ए इज टू ए आई, सेम डिस्टेंस पर फॉर्म होता है। क्लियर? ओके। नंबर 3 कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, सॉरी इट इज इरेक्ट, इट इज इरेक्ट। ओके, चलिए इसको बजाय ऐसे लिख लो, इट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, व्हाट डू यू मीन? मीन्स लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी द राइट ऑफ
इमेज, राइट ऑफ इमेज सेम साइज का भी बनता है, राइट ऑफ इमेज। ये कैसे होगा एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वन? तो आगे देखिए, एक फिगर और बनाता हूं। ये लैटरल इन्वर्जन क्या हो रहा है? देखिए मेरे पास ये मिरर है, ओके, ये लिखा हुआ है एल, ऐसे लिखा हुआ है एल, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। इज इट क्लियर? बी सी। अब देखिए बता, सेम डिस्टेंस बनता है तो इसका इमेज बनेगा, मान लीजिए डिस्टेंस x है तो यहाँ x पर ही बनेगा, इट इज ए डैश, कितने डिस्टेंस पर? x पर। ये C पॉइंट है, चलिए y पर है तो यहाँ C भी y पर ही बनेगा, इट इज C डैश। इज इट क्लियर? B डिस्टेंस का मान लीजिए Z है, ये वाला, ये डिस्टेंस Z है, तो ये जो बनेगा इसका कितने पर बनेगा? ये इट इज ऑल्सो Z, इट इज B डैश। तो इमेज जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब थिंक अबाउट दिस, इन ऑब्जेक्ट C is towards right of B, but in image C dash is the image of C, B dash is the image of B, and A dash is the image of A. C dash is towards the left of B dash. तो इमेज का जो लेफ्ट में है वो ऑब्जेक्ट के राइट में दिखता है, ऑब्जेक्ट के राइट में है वो इमेज के लेफ्ट में दिखता है। Oh, what is the reason of this lateral inversion? What is the reason? Reason of lateral inversion क्या है ये? ओके, द रीजन इज, देखिए ये सी डिस्टेंस पर था, उसका इमेज भी सी डिस्टेंस पर होगा, बी जेड डिस्टेंस पर, इमेज भी जेड डिस्टेंस पर ही होगा। ओके, तो द डिस्टेंस of points on object from mirror will be equal to the image of corresponding points equal to the distance of image of corresponding points from mirror. Corresponding points means A का corresponding इमेज पर होगा A डैश, तो A और A डैश का डिस्टेंस इमेज से और सॉरी मिरर से सेम होगा। इस तरह B का corresponding B डैश, तो B का जो डिस्टेंस मिरर से है वही B डैश का होगा। इट इज द रीजन ऑफ लैटरल इन्वर्जन, इट इज द रीजन ऑफ लैटरल इन्वर्जन। ओके, फिर से देख लो, अब C डिस्टेंस ये था तो C इधर आएगा तो पॉइंट जो राइट में था B के वो लेफ्ट में आ जाएगा। इट द रीजन ऑफ लैटरल इन्वर्जन। नंबर 4 है द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल। साइज भी इक्वल साइज का ही बनता है, जैसे अपना फेस देखता हूं तो इक्वल साइज का ही बनता है ना। इज इट क्लियर? चलिए ऑन नेक्स्ट टर्म।